Hello students, let's discuss a story, The Drover's Wife by Henry Lawson. The story is Drover's Wife. Here the female protagonist is there, and the story basically talks about uh, that Drover's wife, that is the wife of Drover. And the story discusses the character of that lady. And Drover is who? Drover is one who goes to the forest. Here we are talking about the bush. The lady remains in bush. Bush क्या होता है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में जो जो जंगल होते हैं, जहाँ पे सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं, है ना? उस जंगल में वो लेडी अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है, एंड द हस्बैंड गोज टू बुश. ड्रॉवर कौन हुआ? जो शिप को, भेड़ों को, बकरियों को, उनको ग्रेजिंग के लिए, इवन मार्केट्स भी लेके जाते हैं बेचने के लिए, या वट एवर द वर्क्स आर देयर एसोसिएटेड विद दिस बिजनेस. तो वो कहाँ कैसे लेके जाते हैं और फिर कई कई महीनों तक वापिस ही नहीं आते. तो it's quite adventurous and risky for the lady to live alone in that forest with her children. So this drover's wife acknowledges the hardships of Australian women living in the bush. So this story was unique in its time, and as a female protagonist was uncommon. है ना? एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट जैसे यहाँ दिखाई है, ऐसे इतना ब्रेव, इतना एडवेंचरस, इतना करेजियस होना एक बड़ी अलग सी बात होती थी. सो दैट्स व्हाई द स्टोरी राइटर wants to tell us about the bravery or the courage, the boldness, adventurous spirit of that female protagonist. Stories from this period focused on the men living in the outback, the drovers and their struggle. So they dismiss the life of the women waiting at home. तो ड्रोवर्स जो होते थे वो बड़े एडवेंचरस लाइफ में अपने बिजी होते थे, अपने स्ट्रगल्स में, है ना? तो वीमेन घर पे जो उनकी इंतजार कर रही है वुमन, उसकी लाइफ में क्या परेशानियां आ रही हैं और क्या हो रहा है, उस सब के लिए वो उसको एक्नॉलेज नहीं करते थे, है ना? तो कैसे वीमेन जो है, शी इज सफरिंग इन साइलेंस ड्यूरिंग देयर हस्बैंड्स लॉन्ग पीरियड ऑफ एब्सेंस. So Lawson here sheds light on the life of such women, allowing the reader to have an insight into their often heroic actions, as he creates authentic depiction of their existence in the bush and their fight to make it a home. कि women कैसे struggle कर रही है ना? उन विपरीत परिस्थितियों में कैसे उस जंगल में वो अपने बच्चों को एक जगह पे लेके बैठी है और कैसे उस जगह को वो एक घर बनाने की कोशिश कर रही है विदाउट एनी कॉपरेशन फ्रॉम हर मैन. So in this story we learn about one such woman struggling against all odds to protect her family against the elements and being shaped by the landscape that she inhabits. So the story opens with the drover's wife and her children alone in their house in the bush. कि बच्चे जो हैं अकेले हैं अपने घर में, है ना, अपनी माँ के साथ. The two-roomed house is built out of round timber slabs, stringy bark, floored with split slabs. घर की सिचुएशन बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि कैसे वो बैठे.
Then what happens? 4 rugged, dried up looking children. 4 बच्चे देखो बिल्कुल सूखे से कैसे लग रहे हैं. They are playing about the house. Suddenly one of them yells, "Snake, mother! Here is a snake." है ना? So naturally what happens? One of the children discovers a snake and calls for the mother. The bush woman reaches for her stick and rushes to her children. But meanwhile the snake hides in the hole between the wall and the floor. है ना? स्नेक जो है मदर स्टिक को उठाती है, इतने में वो जो है स्नेक जो है वो चला जाता है, होल में चला जाता है. किसी मोरा होता है, बहुत बड़ा सुराख होता है, उसके अंदर वो चला जाता है जो दीवार और फर्श के बीच में होता है. घर भी तो ऐसे टूटा फूटा सा है ना. As the snake disappears, the woman puts the children to sleep and wakes up with her dog. बच्चों को फिर वो सुला देती है, लेकिन अब स्नेक है तो डेंजर तो है ही, है ना. तो उनको सुला देती है और खुद डॉग के साथ पूरी रात बैठी रहती है. She waits for the reptile to come out. As she waits, she is जब वो वेट कर रही है तो वो अपना पास्ट रिकॉल कर रही है ना, कि देखो, है ना. तो देन शी रिकॉल्स हर पास्ट, कैसे कैसे उसकी लाइफ में डेंजरस सिचुएशंस आई, कैसे उसने ये सब फेस किया, है ना. हाउ मच शी हैड टू स्ट्रगल थ्रू आउट द इयर्स, है ना. हर हस्बैंड वाज अवे, कि जब उसके हस्बैंड दूर होते थे घर से तो उसने कैसे कैसे स्ट्रगल किया, है ना. She fought bushfire, flood, dangerous men, even illness that spread among the cattle. है ना. कभी जंगल में आग लग गई, कभी बाढ़ आ गई, कभी आदमी लोग जैसे जो है जो डेंजरस मैन है उनके अगेंस्ट कैसे उसने फाइट किया. कभी कैटल में, पशुओं में जैसे कोई बीमारी फैल गई उसके अगेंस्ट उसने कैसे उस प्रॉब्लम को, कैलेमिटी को फेस किया, है ना. स्टिल शी इज कॉन्टेंट, है ना. वो सेटिस्फाइड है, भाई ठीक है लाइफ जैसी भी है, बट शी फील्स आइसोलेटेड, है ना. देखो घर देखो. The kitchen has no floor rather than an earthen one called a ground floor in this part of the bush. Table in the center of the place. She brings the children in, makes them get on this table. There are 2 boys, 2 girls, mere babies, है ना. लेकिन उसकी आईज जो है वो कॉर्नर पे ही लगी रहती हैं. एंड ए ग्रीन सैपलिंग क्लब लेड इन रेडीनेस ऑन द ड्रेसर बाय हर साइड. हाथ में वो पास में लठ लेके बैठी है कि जैसे ही वो दिखेगा वैसे ही वो मार देगी उसको. तो एनीवे, है ना. फिर वो उसके पास एक मैगजीन पड़ी होती है, यंग लेडीज जर्नल. उसमें से फिर वो फैशनेबल पिक्चर्स देखती रहती है उस लेडी मैगजीन में. शी हैज ब्रॉट द डॉग इन टू द रूम. डॉग को भी अपने रूम में ले आती है ना. तो बाय द मॉर्निंग द सन शी रन्स आउट ऑफ कैंडल्स. सुबह तक तो वो मोमबत्ती जो जला के बैठी थी वो भी बंद हो गई. एंड गेट्स मोर वुड, गेट्स अप टू गो गेट मोर वुड टू कीप द फायर बर्निंग. फिर वो उठती है और लकड़ियां उठाने के लिए ताकि आग जलती रहे. शी सीजेस a stick, pulls it out and the whole wood pile. वो स्टिक को उठाती है तो वो सारा जो लकड़ियों का गट्ठर होता है वो नीचे गिर जाता है. इंजरिंग हर एंड शी बिगिंस टू क्राई, है ना. उसको बहुत ज्यादा. शी हैड पेड एन एबोरिजिनल मैन टू स्टैक इट फॉर हर एंड assumed it was actually full of wood. फिर वो रुमाल उठा के अपने आंसू पोंछती है to wipe away her tears, but she pokes her eye instead as the handkerchief is full of holes. फिर वो अपना रुमाल देखती है तो उसमें भी क्या है, होल्स ज्यादा है ना. दिस रिडिकुलस सिचुएशन मेक्स हर लाफ. रोज पड़ती है.
It is near daylight, but the bush woman and her dog are still on the watch for the snake. सुबह हो गई, है ना, लेकिन स्नेक तो अभी तक आया नहीं. उसकी नजर जो है, she is not a coward, but still events have shaken her nerves. A little son of her brother-in-law was lately bitten by a snake. है ना, उसको सब पता है. Suddenly, the snake comes out of a large crack in the partition slabs. The dog starts to chase the snake and eventually kills it. ठीक है, अचानक से स्नेक जो है वो क्रैक जो पार्टीशन में था, जहां से वो घुसा था, वहां से वो बाहर आ जाता है अचानक से, और डॉग जो है उसको देख के भौंकना शुरू कर देता है ना. वो उसका पीछा करने लगता है और वो उसको मार भी देता है. कौन? डॉग उस स्नेक को मार देता है. द वुमन लिफ्ट्स द रेप्टाइल ऑन द पॉइंट ऑफ हर स्टिक. अपनी उस छड़ी के ऊपर उस स्नेक को उठाती है और फिर उसको आग में फेंक देती है. टॉमी जो एल्डेस्ट बॉय है, वेक्स अप एंड नोटिसेस द टीयर्स इन द आईज ऑफ हिज मदर. है ना, तो वो उसको बोलता है कि नहीं, अपनी माँ की आंखों में वो आंसू देखता है, तो वो अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि भी नहीं, वो कभी भी नहीं जाएगा. है ना, वो ड्रोविंग के लिए कभी नहीं जाएगा. So the drover wife is the central character here in the story. She inhabits the Australian bush with her 4 ragged, dried up looking children. है ना, अपने सूखे उन बच्चे फटे कपड़ों में पाए हुए उन बच्चों के साथ कैसे वो उस विपदा को झेलती है. How she has to encounter various hardships during her husband's absence. All that has been shown. जब उसका हस्बैंड नहीं होता था तो उसको कैसे उन सारी परेशानियों को झेलना पड़ता था. That has been shown here in this story. देखो, mother, I won't never go roaming. Blast me if I do. And she hugs him to her worn out breast and kisses him. And they thus sit thus together while the sickly daylight breaks over the bush. So this story just shows a drover's wife struggles with the circumstances. एक ड्रोवर की वाइफ को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है बुश में रहते हुए अपने बच्चों के साथ, जब उसका हस्बैंड बहुत लंबे समय के लिए ड्रोविंग में के लिए गया होता है ना. So that has been shown. The adventurous spirit of that lady is the theme of the story. I hope you understand. Thank you.